तो जो भी सवाल आता है बेझिझक होके पूछो, घबराने की बात नहीं। वो जो सवाल करोगे ना तो सामने आपको लगेगा कम से कम कॉन्फिडेंस तो है जब मैं सवाल को किया, फिर उसके सवाल भी नहीं किया, खाली चुपचाप भी बात करते रह गया। तो सवाल करो, ठीक है, माइक पे रखा हुआ है, जिसको सवाल पर मैं सवाल शुरू करो। कौन देंगे सवाल? पूछ बेटा। अरे पीछ खरीदे के सवाल करो, सवाल करो, घबराओ मत। आपको जो डाउट होता है जो सवाल है पूछो, घबराने का नहीं। ऊपर कोई है, घबराओ मत, सवाल करो। ऊपर से कोई सवाल है प्रश्न पूछो। Setting up dog. Setting up. क्या कई हाँ इसका क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन। हेलो या कहीं बताइए। It is serving lower term setting the prior either captireta tetatene sizelot for data subject. And I got to go back to it up. Or you want to study in the body of Pranini? Actually, okay. Which subject you have? Psychology. Okay. So we have some good universities in Dubai. दुबई में हमारा है कैंपस। अब एक काम कीजिए, आप नासिर साहब को आपकी जो बायोडाटा है दे दीजिए और आपकी क्यूरी दे दीजिए उनको, यानी कि जो भी है। आई कैन डेफिनेटली गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ठीक है, आपको दे देंगे हम। और आपका कौन सी कंट्री, देखो जहाँ वो कंट्री में जाइए यहाँ पर आपकी सेफ्टी हो। और हमारे पास सब कुछ कंट्री है, लेकिन आपके पेरेंट्स अलाउ करना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात होती है। समझ गए थे? बाकी हम गाइड करेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच अभी आप क्या कर रही हैं? क्या पढ़ने लगा करने या बात तो वेरी गुड नाइस। तो आप जब भी आपको इंफॉर्मेशन के जैसा लगे आप सर से भी बात कर लीजिए, मिस नासिर सर। और मुझे आपको कोई करवे के मैसेज देंगे या जो भी आपको कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको कर दूँ। थैंक यू सो मच। ओके, आई लव जी, थैंक यू। हेलो, हाँ, just to answer you, you had asked us for studying abroad. So I tell you certain important thing you should make a note of it. First is that, see, if you're going abroad now, you should apply for scholarships. Without scholarship, don't even think of going abroad. This is a very practical solution I'm giving you, because there are lot of scholarships over there. Every university, there are some prime universities over there across the world which offers you scholarships. So for getting the scholarship, you have to do your homework over here, you have to get your rankings, your marks in a certified manner, you have to get recommendations over here from your colleges, professors and all, and you have to apply for scholarships for going abroad. There is one very well-known scholarship in the world which is known as Rhodes Scholarship. Rhodes, R-H-O-D-E-S, Rhodes Scholarship. So if you apply for those scholarships and if you get a scholarship, then basically your tuition fees will get reimbursed. Okay? So that will also not hamper the financial burden on your parents. Thank you. And one more thing, your percentage also needs to be high. It should be 80% and above. Then you can apply for scholarships. carry kumai. Okay. और कोई सवाल? Any other questions? Boys, पूछो, आपको क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्या पूछना, खड़े रख के पूछो, शर्गों में वैसे I want to become an entrepreneur because I want to do so many business. Because business बहुत करना पसंद है। अच्छा, entrepreneurship. Okay. About you in which class now? 10th. 10th, sir. Okay. We start now. So you want to become an entrepreneur. So you have that ability in you for commercial aspect basically, right? Yes. So maybe what you can do is that either you see for becoming an entrepreneur you have to get some management education also, and the same time if you get an opportunity to go after your 11th and 12th, you can do either in commerce also you can do, or you can go for arts also, because for getting any professional qualification in your college
So you have lot of opportunity, like Bachelor of Management Studies is there. But at the same time, what I will advise you is that becoming an entrepreneur is a long-term perspective. But first is that you need to work. Okay, you need to work, you need to gain experience. If you have a family business of your own or some of your relatives who are there, so you can join them. Okay, उसमें बिजनेस में रह के सीखो कि कैसे काम होता है. एक एक चीज़ें बारी चीज़ें आपको सीखनी होगी. अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, इफ़ यू आर डूइंग अ रेगुलर बीकॉम ऑल्सो या डूइंग अ BMS ऑल दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप नॉर्मल बीकॉम भी कर रहे हो तो अच्छा रहेगा कि आप है ना कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ले लेना. ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये लोगे ना, जो आप जहाँ भी काम करोगे, कोई लाइब्रेरी में काम किया या कोई फास्ट फूड जॉइंट में काम किया, कोई सेल्स में काम किया आपने, तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, धीरे धीरे जिससे आप आगे बढ़ के जाओगे, तो जब आपका ग्रेजुएशन जब हो जाएगा ना, तो यू विल बी वन अप अगेंस्ट द नॉर्मल अदर ग्रेजुएट्स हु आर जस्ट फ्रेशर्स. तो जब आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए जाओगे आए, सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप खुद तजुर्बा लो, गेन एक्सपीरियंस, एंड देन यू शुड गो इन फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि आप जब तक कोई चीज़ का तजुर्बा नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे आप अप्स एंड डाउन से सीखोगे. और स्वॉट एनालिसिस कैसे करोगे? स्वॉट एनालिसिस सिंपल होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. कि आप कोई भी छोटा सा आगे समझ लो मोबाइल फ़ोन की दुकान शुरू कर रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मोबाइल फ़ोन का स्वॉट एनालिसिस कैसे करोगे? धारावी में शुरू करते हो ये एरिया के अंदर, हाँ, तो उसका स्वॉट एनालिसिस मतलब आपको स्ट्रेंथ देखना है कि भाई मेरे पास पे कौन से मोबाइल्स पे बेचते वाले तो दूसरे लोग नहीं बेचते. वीकनेस क्या है मेरा, मेरे यहाँ में कमजोरी क्या, एरिया अंदर पड़ता है या मेन रोड पे पड़ता है या अंदर गली के अंदर पड़ता है, वो क्या मेरी वीकनेस बन सकती है. अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरे पास में क्या बेनिफिट है जो दूसरों के पास नहीं है. और थ्रेट्स, ये मेरा कॉम्पिटिशन क्या है. तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो सबसे बड़ा आपको काम आएगा. तो यू गेन योर एक्सपीरियंस, हो एक्सपीरियंस हासिल करो, या कोई अगर बिजनेस किसी का है तो वहाँ पे सर्विस ज्वाइन करो, सर्विस करो, सीखो कैसा काम होता है, क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे बिल्स बनता है, क्या क्या होता है, धीरे धीरे सीखना होगा. और अपना माइंड फोकस रखो उसके ऊपर, तो भी आप आगे जाके इंशाल्लाह फिर यू कैन गो फॉर योर बिजनेस. बट एट द लेटेस्ट चीज. यस, ओके, आई गेट. अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बिज़नेस तुमने कहा, हाँ, है ना, कि मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है. तो मेरा सवाल ये है कि बिज़नेस मतलब जो नॉर्मल तुम आसपास में अपने देखते हो लोगों को बिज़नेस करते हुए, तुम उस वे में बिज़नेस की बात कर रहे हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो जो डिफरेंट है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सर ने एक्सप्लेन किया था, हाँ, रिजवान सर ने. तो कौन से बिज़नेस में तुम्हें दिलचस्पी है? कि अभी तो मेरा स्टार्ट है, मेरे को अच्छा लगता है ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बिजनेस. मतलब कि मैंने एग्जांपल दिखा था, जैसे कि एक कलिंगा वाला रहता है, उसके बाद बहुत सारे कलिंगा रहते हैं, वो है ना पैसा बेच रहे हो, उसे समझ जाओ 30 रुपये में बेच रहा है. और उसका ही जो बड़े बड़े दुकान वाले लोग हैं ना, कह रहे हो मिक्सर की इसका जून बना के बेच रहा है, उससे महंगा दे. सही बात, ये और 100-150 रुपये दे रहे, मतलब बहुत 4-5 लोग का. बहुत अच्छा, मतलब बिजनेस करना चाहता हूँ मगर कुछ ऐसे तरीके से जो कि नॉर्मल रेगुलर एडिशनल बिजनेस है जो वो नहीं, एक कनिक का जूस बना के बेचोगे ऐसे. एक नहीं वैसा नहीं, तुम नहीं बेचोगे, मगर कहने का एग्जांपल का मतलब ये है कि कलिंगर लोग नॉर्मली बेच देते हैं, होलसेल से एक दाम में खरीदते हैं, मान लो 20 रुपये, और फिर उसे 10 रुपया 20 रुपया प्रॉफिट करके 40 में बेच. वो बिजनेस नहीं, बल्कि कलिंगर को आपके 20 में खरीदा, उसकी जूस बना कर 100 रुपये में बेच, इस तरीके. तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में आ जाता है. अब बिजनेस में दो तरीके से वो डिवाइडेड है, दोनों भी अपने जगह पर सही है, डिपेंड करता है हम क्या करना चाहते हैं. अब एक बिजनेस होता है जिसको ट्रेडिशनल बिजनेसेस के, जिसमें क्या होता है कि हमने कहीं से प्रोक्योरमेंट की, अगर हम बेच रहे हैं तो कोई चीज़ हमने कहीं से ख़रीदा एक दाम में, उसके प्रॉफिट एक्सपेंस सारा कुछ ऐड करके उसे XYZ और एक अमाउंट में बेच दिया, उसका जो प्रॉफिट आता है उससे हम अपने बिजनेस को रन कर. इसी में मैन्युफैक्चरिंग आती है अलग अलग की, बट इसमें क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसकी बात नहीं करता हूँ. दूसरा एग्जाम्पल देते, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रहा है, हम एक प्रॉब्लम निकालते हैं. जैसे तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, तो इसमें कैसा होता है ना कि हम पहली बात को जिस भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं, पहले तुम्हें उस फील्ड का पूरा सा तजुर्बा, जैसे सर ने बताया, एक्सपीरियंस का तरीका ये कि या तो हम किसी के पास काम करके, सबसे आसान तरीका है किसी के पास काम कर लो, वो तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे और प्लस तुम उनके काम के साथ काम करते हुए काम को सीख भी जाओ, तो एक एक्सपीरियंस आ गई.
या फिर इसके अलावा और एक तरीका क्या है कि तुम पढ़ रहे हो, अभी 10th में हो, अभी जस्ट स्टार्ट किया 10th का, तो अभी तुम्हारे पास वक्त है 10th स्टैंडर्ड से लेकर तुम चाहे आगे जो भी स्ट्रीम चूज करोगे, अभी सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे पास वक्त है। सबसे बड़ा रिसोर्स जो है तुम्हारे पास हो गया है टाइम। तो अगर तुम अपने पूरे वक्त को प्लान कर मैनेज कर और उसके बाद बाकी के टाइम में, मतलब स्टडीज़ के अलावा बाकी टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप की बुक ले देख। तजुर्बा एक्सपीरियंस जो है, एक तो प्रैक्टिकल होता है कि हम करके सीखेगी, अभी तुम वो नहीं कर सकते तो अभी के लिए अपना टाइम कैसे यूज़ करोगे, एक बुक ले लो एंटरप्रेन्योरशिप की होता है, बायोग्राफी पढ़ो, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी ले रहा हो। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे, रिलायंस कैसे बना पढ़ो, टाटा कैसे बना पढ़ो, अभी के जो नए जोमेटो आ गया, ओला आ गया, ये सब कंपनीज कैसे बनी, इनके बारे में स्टडी कर। तो अभी एज अ स्टूडेंट तुम कहीं काम नहीं करने जाओ, प्रैक्टिकल वर्क 10th स्टैंडर्ड में तुम हो तो कहीं काम करोगे नहीं लेना। तो 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में तुम खुद को डेवलप कर सकते हो, सबसे बेहतरीन तरीका एक टाइप का कोई बुक लो, या सेकंड देखिए आजकल ऑनलाइन में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ है फाउंडर्स के, जो वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते, काफ़ी सारे वीडियोज़ है। मूवी जो होता है वो थोड़ा एग्जैजुरेशन तरीके से, एक्साइटमेंट के तरीके से बनाया जाता है, बट जो रियल इंटरव्यूज़ है वो अगर हम देखेंगे तो हमें बाकी फाउंडर्स की सोच समझ में आएगी। तो पहला तो हो गया प्रैक्टिकल बुक ले लिया पूरी और वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी। सेकेंड हो गया कि हम ऑनलाइन में यूट्यूब पर दूसरे फाउंडर्स के लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज सुन रहे हैं। ये अभी के लिए तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक बार तुमने स्टार्ट कर लिया, फिर तुम्हें एक डॉट से दूसरा डॉट मिले, मतलब तुम जब बुक पढ़ोगे या तुम वीडियो देखोगे, कब तुम्हें कहीं और इनपुट समझना है, प्रश्न आए, तो तुम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। और फर्स्ट स्टेप अगर तुम्हें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो सबसे पहले कोई बुक मतलब ऑफलाइन ऐसे खरीदना नहीं है कि ऑनलाइन में PDF फ्री में मिल जाते। कोई एक दो बुक चाहिए तो मैं रिकमेंड भी करूँगा, जैसे 0 to 1 एक बुक है, पीटर थिल ने लिखा है, फेसबुक का सबसे पहला इन्वेस्टर का, 0 to 1 बुक का नाम है। उसमें स्टार्टअप के फंडामेंटल एकदम बेसिक चीज़ें बताएगी, तो तुम वो बुक लेके पढ़ना स्टार्टर्स का। एटॉमिक हैबिट्स हैव डेवलप टू वगैरह के ऊपर सेल्फ बुक पे आता। बट स्टार्टअप है तो फिर या तो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में, वो उस वक्त ही पूरी नेट के बारे में उसमें लिखा हुआ, वॉल्टर रिसेप्शन मिल रहा है, इलॉन मस्क की बायोग्राफी है, वो पढ़ो। इनमें से कोई बुक से स्टार्ट तो घुमा कि नेक्स्ट स्टेप अपने आप आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी अब्रॉड का ऊपर हमारी वो बहन बेटी उन्होंने पूछा, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूछा, बराबर आंसर देते हैं तो सबको सब सुनो ताकि तुम्हें भी वो सवाल का जवाब तुम्हें भी मिल जाए। और शर्मा मत, सब ऐसे ही बातचीत कर लेना, जो भी सवाल है कुछ सवाल। Jesus, you united. सबके लो सवाल है नहीं को अच्छा, नहीं तो मैं हम सवाल पूछेंगे तो तुम्हें जवाब देना होगा। अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में कितने हो यहाँ पे, मतलब अभी 10 या तो हो गया या अभी 10th क्लास में पढ़ो, कितने हो? एक तो हो गया, ठीक है। उनको मत तो 10 जिनका हो गया, डरो मत, ऐसे ही बातचीत ही कर रहे हैं ना, आपको छोड़ना है ना। तो अभी 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहला सवाल तो हर वाले तुमसे पूछते होगे कि कितना % आने वाला, पूछा किसी ने? क्या तुम्हें क्या लगता है कि एग्ज़ाम हो गए, पेपर के अंदर तो कितने % आ सकते हैं? 90 या 5% का, बहुत अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या दिन हुई? कॉमर्स क्यों BA? तो MBA में क्या होता है, जो भी तुम्हें पता है, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, मुझे कोई आइडिया है। लाइक बिजनेस साइट है, इस ऑलरेडी अगर अपने पास बिजनेस है तो उसको आगे बढ़ा देता है, या अपने को न्यू बिजनेस उससे MBA करने के बाद हम लोग न्यू बिजनेस अपना खुद का खोल सकते, या उसमें पैकेजेस भी रहता है, MBA के बाद पैकेजेस भी रहता है। मतलब तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है नहीं, ऐसे कहीं पे अपना सारा पेपर। और मान लो मतलब अभी 11th 12th कॉमर्स से करोगे, राइट? तो कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो आगे आगे करना पड़े, क्या सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स? आगे चल के मैथड, मैथ्स और सर मैं दो पे तीन महीना नहीं मान लिया आता है कौन चीज
कॉमर्स में देखेंगे सब्जेक्ट सेकंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो ओसियम मिले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट थे। वो जाके फर्स्ट ईयर बीकॉम से आपका वो कॉमर्स बनेगा और फिर जब आप फर्दर स्टडीज से आएगा मास्टर्स करने के प्रोफेशनल कोर्सेज तो फिर उसमें आपको वो एडवांस ले लेते हैं। सो अभी 11th-12 के कंपलसरी आपके लैंग्वेजेस दो हैं, ठीक हो। लैंग्वेज की को उर्दू भी ले लेता है, हिंदी भी लेता है, इंग्लिश कंपलसरी आपकी, और 4 सब्जेक्ट और कंपलसरी इकोनॉमिक्स है, ओशियम में टीके हैं, एसपी और मैथ्स में ऑप्शंस, या तो आप एसपी ले सकते हैं या मैथ्स है। एसपी में क्या है, बेसिकली आपका टोटल फाइनेंस मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर्स बताया जाता है। डिनर फाइनेंस मार्केट ऐसा ही होता है, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये बेसिक चीज़ हो रहा है। तो ओसीएम है आपका, ओसीएम में बिजनेस है, बिजनेस में भी अलग अलग है, जैसे सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, ये सब पूरा इंफॉर्मेशन। आपका क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा बोलिए एमबीए करना है तो इसके बारे में आपको क्या आता है, कैसे रहेगी देशो 11th-12 कर दिया तो उसके बाद आपको क्या सोचा है, कैसे होता है? आप बोलते से कैंडिडेट यार। ठीक चिंतन, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर कॉम करें या पीएमएस बैप कुल भी आप करते तो आपको 3 साल के बैचलर डिग्री लेना है, और बैचलर डिग्री में मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज आपका 50% मिनिमम आना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्रैकिंग। सेकेंड, आपको अभी 2 चीज़ें नहीं, या तो आपको सीईटी का एग्ज़ाम लेना है जो महाराष्ट्र लेवल पे होता है एक, और एक कैट का एग्ज़ाम होता है। इसके अलग अलग उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बेसिकली उसकी पढ़ाई भी बहुत अलग होती। उसके कॉलेजेस आए हैं, कुछ कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो उनके कोर्सेज़ के नाम अलग है, एमबीए बोलते हैं लेकिन और एमएमएस होता है, ठीक है। एमएमएस की डिग्री देते हैं, मास्टर्स मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र सी की एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ कॉलेज जो सी थी एक्सेप्ट। अभी उसमें कॉलेजेस के 3 क्राइटेरिया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब ए ग्रेड में सब IIM सोलर आते हैं, वो CET एक्सेप्ट करके। क्राइटेरिया क्या है वहाँ पे, सपोज एग्ज़ाम पर कि 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और टोटल सीट जो है IIM में 120, तो आपको 120 ये कैटेगरी में आएंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो उसके लिए इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, तो एफर्ट डालेंगे कैसे सर? स्टार्ट लाइव में आपको 12th स्टैंडर्ड जैसे पास आउट के तब से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर जाता है, और मुसलसल 3 साल आपको उसमें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। क्लासेस वगैरह भी है उसके, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस में आपको एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं। क्लासेस में आपको बता देंगे कि ये चीज़ ऐसे, लेकिन आपको स्टडी करनी और अगर उसमें उतना परसेंटेज आ जाता है तो आप कर सकते। महाराष्ट्र में CET एग्ज़ाम्स जगह कर सकते हो। महाराष्ट्र में अगर मुंबई में बात करूँ तो बहुत अच्छे कॉलेजेस है, जैसे कि अगर मुंबई में 2-3 कॉलेजेस अच्छे हैं, चंद्रनाथ बजाज NMIS है, ये कुछ कॉलेज है अच्छे, पैकेजेस अच्छा है उसका। अगर एवरेज पैकेज अगर मैं बात करूँ लास्ट 23-24 था, मैक्सिमम था 87 पॉइंट समथिंग था, और मिनिमम 27 पॉइंट। सो उनका पैकेज हाथ उन्ना बबल्स था। NMIS का भी सेम है, और भी कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस है जो 8, 10, 25 वैकेंसी। तो एट द एंड मोरल स्टोरी है कि आपको सबसे पहले प्रोसेस में काम करना है, या आपको ये सारी चीज़ें। अभी MBA में भी बहुत सारे अलग अलग है, फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करना, सेल्स करना है, HR करना है, ऐसे अलग अलग। तो आपका बेसिकली आप क्या सोच रहे हो, किस में आपका बिजनेस में जाना है तो बिजनेस में क्या आपका फैमिली बिजनेस आपको हैंडल करना है तो ठीक है, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आइडिया है इसका। ये छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं अपनी बात खाता हूँ। एक पर्सन थे, उनके फैमिली का बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का। नॉर्मल ऐसे लोग देखो ना टेम्पो वाले जो बिजनेस यहाँ पे चाहिए, नॉर्मल 4-5 टेम्पो है किसी घर में, लोकल भाड़ा मारते, ऐसा करता उनका फैमिली प्रोसेस। तो उनका एक बच्चा था, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखा अच्छे से कराया, MBA कराया। तो उनसे पूछे भी आप क्या करने को, तो बोलते कि मैं फैमिली बिजनेस ही करना है, मेरा बगा है, मस्त अच्छा है मेरा, मैं इसको ही करूँगा। उन्होंने कि इतना पढ़ा लिखा कि फिर आपको यही करना था तो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत, वो थोड़ा हर्ट बहुत ऐसे थोड़ी नहीं, पढ़ाई लिखाई तो कहीं ना कहीं तो काम आई। सो उसने थोड़ा सा सर्च किया, देखा कि एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को दिल्ली से चेन्नई मंगाने के उसने कुछ खर्चा की थी। जैसे यहाँ से अमेज़ोन
का सामान दिल्ली से पैक होके अगर वो स्टेट में जा रहा है तो उसका कॉस्ट लगता है। जैसे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन वर्क तो वाया फ्लाइट जा रहा है तो फ्लाइट का कॉस्ट है, अपलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग को 3 दिन लगते हैं उनको यहाँ से वहाँ गुड्स को डिलीवर करने के, और काफ़ी कॉस्ट हो रहा था। सो उसने पूछा कि ये चीज़ आप रोडवे से क्यों नहीं होगा। सो 3 दिन लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले 3 से 4 महीना वो ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ उन्होंने बिताया, ड्राइवर के साथ भी, जो वहाँ पे हमारे लोग हैं जो उनके साथ देखा उनको क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे वो हैंडल करते हैं। तो ड्राइवर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सर बीच में रेस्ट नहीं मिलता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुछ डिलीवर करने में टाइम भी लगता है, कॉस्ट बढ़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें था। उन्होंने एक आइडिया प्लान किया कि ये जो 3 दिन का जर्नी है इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि मान लो दिल्ली से एक पर्सन जाएगा कुछ दूर तक, फिर वहाँ से एक नया ड्राइवर होगा, वो दूसरी और गाड़ी को वहाँ पे आगे बढ़ाएगा, फिर वहाँ से एक दूसरा लेके, उसमें क्या एक तो ड्राइवर का कॉस्ट कम हो जाएगा और माल को बार बार अनलोड अपलोड नहीं करना पड़ेगा, और उनका जो गुड्स है उसका जो एक्सपेंस है वहाँ का डिलीवर करने का वो भी कम कॉस्ट हो जाएगा। तो ये प्लान लेके वो अमेज़ोन के पास गया और अमेज़ोन ने उसका वो आइडिया जो है एक्सेप्ट किया और 400 करोड़ का चेक साइन करके तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। सो समथिंग लाइक आइडियाज़ आपके माइंड में से, आप MBA कर लो, कुछ भी करो, अगर आपके पास इस तरीके के आइडियाज़ नहीं, थिंकिंग नहीं, सो MBA भी कुछ नहीं। सर ने बताया कि भाई आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ तो बिज़नेस करने के लिए खुद का हो या आप किसी के अंडर में काम करो, किसी कंपनीज़ में काम करो, डजंट मैटर, बस आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो आप दुनिया से हट के चीज़ों को सोच सके, तभी वो चीज़ सक्सेसफुल हो। ओके भाई, सवाल यही है, इसलिए हम इसके अब इस पर एलाबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा ना, बिजनेस आपको करना है, बिजनेस का एक सबसे बड़ा वो है, या कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ जो भी ग्रो होने के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है लर्निंग। जब तक तुम्हारी लर्निंग है, जब तक तुम्हारी ग्रोथ है। आपको क्या लगता है कि जो बनिया वाहन चला रहा है क्या उसकी भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसका बिजनेस है अच्छा ना सा को यार। लेकिन छोटे मोटे बिजनेस वाले जो हमारे कारखाने वाले होंगे, या फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग पे होंगे, कोई ट्रेडिंग में होंगे, कोई ट्रांसपोर्ट पे होंगे, ये सब लोग आप गौर करेंगे तो इनके पीछे भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये लोग भी सीखने से मुराद मेरी क्या है कि वो अपनी गलतियों से सीखे हुए, उनको भी बिजनेस में लॉसेस आए हैं, उनको भी लोगों ने धोखे दिए हुए, उनके भी ट्रांजैक्शन जो होते हैं, विभिन्न साइकोलॉजी जो होती है, लोगों से कैसे बात करना है, उनका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश का नहीं होता है, हमारी गलत से भी, और हमको ऐसा गलत बताया गया है कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा है मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है, बाकी अच्छी है, उर्दू अच्छी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि राइट डायरेक्शन में, राइट पीपल के सामने राइट कंटेंट को डिलीवर करना, राइट पे भी, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आपका कंटेंट आपकी मदर टंग भी हो सकती है अगर आप बेहतर तरीके से करते। मेरा एक दोस्त है जो मैकेनिक था, कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए वो MBA तो नहीं कर सकता है, ना ही वो BCom कर सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। अब वो 6 ड्रॉप आउट था, 2 व्हीलर का मैकेनिक था, लेकिन एक चीज उसके अंदर थी, हम लोग बात जब डिस्कस करते थे कि बहुत कुछ सीखता था, लोगों से सीख कर बातें करता था, उसको अडॉप्ट करना। तो एक दिन हमारे दिमाग में आइडिया, हम डिस्कस करने लगे कि डेकोरेशन का बिजनेस है, वो गाँव में नहीं है। उसने डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट किया और वो चल पड़ा। उसकी क्वालिटीज ये डेवलप हो गई थी कि उसकी जिंदगी में आज तक किसी से झगड़ा नहीं हो, किसी का साथ में झगड़ा नहीं, मतलब उसके अंदर पेशेंस कितना है, कभी भी किससे भाड़ोल नहीं उसकी, कभी किसी से हुज्जल नहीं, कम्युनिकेशन हुआ, लोगों से ट्रांजैक्शन कैसे करना है। अब आप दुकान पे जाइए, किसी मियाँ भाई की दुकान पे कभी जाइए आप, तो उसका बाप जो है आपको तमीज से बात करने वाला मिलेगा, बच्चा बदतमीज से बात करने वाला मिलेगा। बाप अगर खाना खाने के लिए गया तो थोड़ी कैंसर हो जाती है दुकान पर, ऐसी चीजें भी होती। तो हम फैमिली बिजनेस को भी हमारे रन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमने वो चीजें सीखी नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस इज ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आप अभी से ये फैसला करते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर बिजनेस में अभी कामयाब होने वाले, ज्यादातर स्टार्टअप वाले टेक्नोलॉजी भी से, जिन्होंने MBA भी नहीं किया है, जिन्होंने BCom भी नहीं किया है,
जिन्होंने कॉमर्स की कैपेसिटी भी नहीं आती है, तो हाउ दे लर्न? कुछ लोग उससे लर्न किया। तो बिजनेस के लिए सबसे बड़ी शर्त जो है आपका माइंडसेट। आप माइंडसेट की तलाश ये करेंगे कि अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं और आपका माइंडसेट ये है कि आपके पास में 1 लाख का आईफोन है और आप लोगों से फंडिंग की गुजारिश कर रहे, अपने अम्मी को कह रहे कि मुझे फोन दो, अब्बा को कह रहे हैं मुझे फोन दो, का माइंडसेट डला होना। 1 लाख के फोन के बजाय 10 लाख के फोन पर आ जाओ और अपना सब कुछ मैंने लगा दूं। जब अपना सब कुछ मैं लगा दूं ना, तो मेरी कुर्बानी देने का जज्बा मैंने सीखी है कि बिजनेस के अंदर पहले लगाया जाता है। हमारे अक्सर बिजनेस में मैंने देखा हुआ है कैसे होते हैं, दुकान से कमाएंगे और घर पेंटिंग बनाते रहेंगे। दुकान से कमाया 2 फ्लैट ले लिया, दुकान से कमाया 3 फ्लैट बनाया, वो दुकान जो है वो इल्लीगल जगह पे। फिर एक बुलडोजर आता है, बुलडोजर कार्रवाई होती है, सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग योर बिजनेस? क्योंकि आपके पास से बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है। आप समझते हैं कि बिजनेस आज है कल नहीं है, जॉब हमेशा रहती है। तो आपका माइंडसेट जॉब कर रहा है, आपका माइंडसेट जॉब कर रहा है, आप बिजनेस में आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको यकीन नहीं कि आपका बिजनेस जाए ना। बिजनेस करना, तिजारत करना सुन्नत है। सुन्नत है तो हमारा 100% यकीन उसके ऊपर होना चाहिए। तो यकीन डेवलप करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको बेस्ट बनाने के लिए आपके पास में आपने कुछ चीज़ सीखी। आपका फैमिली बिजनेस है, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी एक चाय की दुकान है, आपने चाय की दुकान को स्केल अप करने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल को सीखा नहीं। बहुत सारे अलग अलग, मैं नाम नहीं लूँगा, कम्युनिटीज़ के अलग अलग एरिया में दुकान है, लेकिन इनका कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है। वो फ्रेंचाइजी मॉडल वाला येवले वाला आया पुणे में। येवले में मैंने चाय पिया तो मालूम पड़ा कि उसके 80 स्टोर है, 80 दुकानें हैं, 80 फ्रेंचाइजी है। बाद में पता चला कि 1 साल में उसकी 2000 फ्रेंचाइजी होगी। और हमारे यहाँ पर मैंने मोहम्मद अली रोड के ऊपर बाकायदा दुकानों के ऊपर लिखे देखा आमची बोटे ही शाखा नहीं। आपने बिजनेस सीखा ही नहीं, आप उसको कर रहे हैं अपनी मिलके समझ के जॉब टाइप बेंडस माइंडसेट के साथ में। आपकी टेंडेंसी जो है, आपका माइंडसेट जो है जॉब वाला है। आपको उसमें डर लग रहा है कि कोई आ जाएगा, डर लग रहा है कोई आ जाएगा, मतलब आपने सीखा ही। फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, फॉर डेवलपिंग द माइंडसेट, यू शुड लर्न द। सबने जो किताबों के जरिए, बिजनेस की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज है। स्टार्टअप क्या होता है ये देखिए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड द स्टार्टअप। बिजनेस जो होता है जो नेचुरली ग्रो करता है, हमको पता नहीं कि कहाँ जाएगा। आम का बिजनेस, केले का बिजनेस, किराना का बिजनेस, इसका बिजनेस। स्टार्टअप वो होता है जिसमें स्टार्ट और एंड डिसाइड होता है। मेरी एक्सेस कब होंगी, मेरा बर्न रेट कब आएगा, मैं कब प्रॉफिट में जाऊंगा, कब मैं कंपनी को सेल करूंगा, कब मैं उसके से निकलने की कोशिश करूंगा, ये सब डिसाइड हो रहा है। इसको कहते हैं स्टार्टअप। अब स्टार्टअप आपको सीखना पड़ेगा। स्टार्टअप सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टअप की फंडिंग कैसे होती है, एंजल इन्वेस्टर्स कहाँ पर मिलते हैं हमको, कैसे पिच करते हैं, कैसे हमारा प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान बनता है, ये सब चीज़ें आपको MBA वाला नहीं सिखाएगा, ना ही आपके कॉमर्स के कोई सिलेबस में। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है यूट्यूब के ऊपर। जब आप स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं, स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं, उसकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। आप स्टील के ऊपर एक सीरियल आता है, कौन सा सीरियल है, शार्क टैंक इंडिया, कितने लोगों ने देखा है, उसका 3rd सीजन चल रहा है आगे। Why are you not learning? मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाला था कि भाई अपने बच्चों को बोलो कि वो सीरियल देखिए शार्क टैंक इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप की टर्मिनोलॉजी कौन सी है, कहाँ कहाँ पर आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। उसमें आदित्य दादरी जो आपका है वो भी उसके अंदर एक बार आया था। उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के आइडियाज आते हैं। जब तक आप आपके एक्सपोजर को नहीं बढ़ाए ऊपर, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, ये तरीका है। आप बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं मेरे बच्चे। आपको अगेन कोई डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको डिग्री लेना इससे जरूरी है कि वो एक सिस्टम में पार्ट है। हो सकता है कि आपको ग्रो होते 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 आप उसकी जरूरत पड़ जाए, आपको ऑडिट की जरूरत पड़ जाए, आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ जाए। हो सकता है कि आपको अच्छा आप CA बन जाए तो आपके बिजनेस को और बेहतर तरीके से ग्रो कराओ। तो ये सब सी चीज़ें जो है ना, जब तक कि आपका माइंडसेट नहीं बनेगा, जब तक कि आप अपना सब कुछ बिजनेस के लिए लगाने वाले नहीं बन जाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बिजनेस के लिए बना हूँ या बिजनेस के लिए नहीं बनाओ। क्योंकि आप अपने माइंडसेट में 2 चीज़ें नहीं रखेंगे कि ये नहीं हुआ तो जॉब कर लूँगा, वो नहीं हुआ तो वो नहीं कर लूँगा। लो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी के लिए काम करेंगे। और आपका देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे UPSC की बात करी जैसे हो रही थी, कि अगर मैं बड़ी चीज़ की तैयारी करूँ तो छोटी चीज़ मेरे हाथ से निकल जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। एक कहावत है कि मरा हुआ हाथी जो है 1.25 लाख का बिकता है।
अगर आपने बेहतरीन चीज़ की तैयारी कर ली, अगर आपने 100 करोड़ की बात, 1000 करोड़ की बात मैंने जो जिक्र किया, अगर आपने वैसा माइंडसेट तैयार करने के लिए उतना लर्न करना शुरू कर दिया, तो आप मार्केट में 200 करोड़ के 500 करोड़ के लायक बन गए। अब आपको उमदा नहीं मिलेगा, 25 लाख तो मिलेगा, और 25 लाख के हमारे लिए बहुत होता है। लेकिन हम कम से कम 1000 करोड़ वाले की स्टडी तो सुने, उसका बायोग्राफी सुने, उसका क्या जर्नी था वो सुने। एक धारावी की बच्ची है, हेस्को की स्टूडेंट है, उसका इंटरव्यू है, उसने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो की, कैसे की, पहले जॉब की, वगैरह वगैरह जो भी है। ये सब चीज़ों की अगर मुझे आदत बन गई है कि मैं उस लाइन की सारी चीज़ों को समझने में ही कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब आप बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। एट द एज ऑफ 18 आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बेटा सीखते रहो, और सीखने के बहुत रास्ते इस दौर के अंदर। इंटरनेट है, गूगल है, इंटरव्यू है, बुक्स है, क्या नहीं है। आप प्रिविलेज हो, और आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप इस दौर में पैदा हुए हो, जहाँ पर आपके साथ सामने हर चीज़ अवेलेबल है। सर मेरा एक सवाल है जी, एक क्वेश्चन स्टूडेंट में बोले थे, अरे सर एनिमेटर बनने के क्या करना है? इस पे एनिमेटर लिए आप एनिमेटर बनने की क्या करना है? तुम्हारे पास ये पर्सनल मोबाइल फ़ोन है या पेरेंट्स का? पर्सनल है। कौन सी क्लास में? 10 पास है। अभी हो गया हिस्सा। ठीक। अब एनिमेशन जो है वो जैसे कहीं से तुमने देखा होगा ना एनिमेशन, अब जैसे तुम्हारे मन में इच्छा है कि मुझे एनिमेटर बनना, कहाँ कौन सा एनिमेशन देखा है? तो पॉपुलर है ना अभी चल रहा है इसलिए। कौन सा? कोई एग्जाम नारुतो भाषा मतलब ये देखा है, एनीमे देखा। अभी पहले तो एनिमेशन का मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो आज और आज से 10 साल आगे तो जैसे सेशंस हो गए थे, क्वेश्चन के हिसाब से एक आंसर ये था, ठीक। अब मान लो आज 2025 है, 10 साल आगे 2035 होगा। एनिमेटर एज अ करियर क्या 10 साल आगे भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना आज है? ये पहला सवाल की थी। स्टेप एप्टो थियरी में हम लोग की टीम की एनिमेशन की 40 लोग हुए। कितने लोग थे उसमें? 40। कैसे बनते हैं वो सिंपल आंसर है, वो मैं तुम्हें दे देगा, बट इसके अलावा एक चीज़ एनिमेशन में सब तो 40 लोगों की टीम थी। एनिमेटर बनना बहुत आसान है। पहली चीज़ तो वो डिप्लोमा के अंदर क्या आता है, उसके अलावा उसके कोर्सेज हो, फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेमवर्क्स है, CNIIT, ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लोग एनिमेशन के कोर्सेज थे, ठीक राइट। और वो लोग ये कहते हैं कि आपको कोर्सेज खत्म होने के बाद जॉब दिलाएंगे, बट कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कोर्स के बाद जॉब देना से। वो तुम्हारी इंटरव्यू अरेंज करवा सी कॉन्टैक्ट्स पे, तो जॉब नहीं गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं कर पाए, तो प्राइवेट कैसे कर पाएंगी, करेक्ट। अब एनिमेशन AI के वजह से आने वाले 5-10 सालों में एनिमेटर की भी ज़रूरत होती है। नहीं, ये एक सवाल है, क्यों पता? आज ही ट्राई करो तुम उन AI में जाके, मुझे कोई इमेज बनानी है या कोई वीडियो बनाना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि हम AI को कुछ करने गए हमारे सेक्स के थ्रू या वॉइस के, उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल में आके सर्च करो व्हाट टू डू आफ्टर 10, वो एक प्रॉम्प्ट है, और वो मैं गूगल के बदले किसी AI प्लेटफॉर्म के बाद, ठीक है। ChatGPT फेमस हो गया, उसके अलावा भी काफ़ी सारे AI के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे एनिमेशन भी बनाए जा सकते हैं। तो अब एनिमेटर एज अ करियर 5-10 साल बाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब ये इसका कि मगर फिर भी मान लो अगर तुम्हें एनिमेशन आता हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि एनिमेटर जिसको एनिमेशन करना आता है वो वेस्ट है, नहीं। अब मान लो सभी के घर में खाना होता है ना, हमारे घर में हमारी माँ बहन खाना बना के हमें देती है, अब उनको खाना पकाना आता है। मान लो हमें मशीन लेकर आके देते हैं उन्हें, जो मशीन खाना बनाते हैं, उसमें खाली हमें सेलेक्ट करना है कि मुझे बिरयानी पकानी है या मुझे रोटी बनानी है, और उसको हम सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी बताएंगे कि 5 लोग खाने वाले, 10 लोग खाने वाले, और वो मशीन हमें बोली कि ठीक है इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर दो, और थोड़ी देर बाद वो खाना बना के तुम्हें दे देंगे। मगर वो मशीन को बताना पड़ेगा ना कि मुझे क्या चाहिए, मसाला कौन सा डालना है। वो मसाला जब बोलेगा कि इसमें ये मसाले लाओ, तो मसाले की नॉलेज भी तो उनको होनी चाहिए। तो भले से प्रॉम्प्ट के थ्रू हम काम करवाएंगे, मगर फिर भी उसकी नॉलेज जिनको होगी वही लोग वो काम बेहतर कर पाएंगे। समझ में? तो ये क्यों बताया तुम्हें? डायरेक्ट हो सकता है एनिमेशन यहाँ से जाएगा, मगर एनिमेशन की नॉलेज ज़रूरी होगी। एनिमेशन करने आता हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो वैसे भी कौन कर रहा है, AI और टेक्नोलॉजी करके देख, पर फिर भी उसकी नॉलेज चाहिए हो।
अगर तुम्हें करना बहुत ही सिंपल है, एनिमेशन का कोई डिग्री नहीं है, वो एक कोर्स होता है एनिमेशन का। गूगल पे भी अगर जाके लिखोगे ना एनिमेशन कोर्सेज नियर मी, तो इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, या फिर आसपास में जो इंस्टीट्यूट्स है वो आ जाएंगे। कहाँ पे करना है, फ्रेमवर्क्स है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो कराती। अंडरस्टूड? तो तुम एनीमे तुम्हें पसंद है क्योंकि तुम्हें एनीमे देखना पसंद है, नारुतो जब अपन बता रहे, मगर देखना पसंद है इसलिए तुम्हें वो काम भी पसंद हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अच्छी बात है, एक डायरेक्शन का टेस्ट मिलेगा। अगर तुम सीखना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, या डिप्लोमा कर सकते, या फिर टेक्नोलॉजी उसका बड़ा पार्ट है, वो एनिमेशन टेक का पार्ट है, तो तुम टेक्नोलॉजी सीखो और उसके थ्रू फिर स्पेशलाइजेशन करो एनिमेशन तक। ये भी तरीका कर सकते। टेक्नोलॉजी में डिग्री करते रहो और पैरेलली कोर्स करो। जैसे मान लो एक बेसिक BSc, BSc CS, BSc IT, BCA, एक टेक्नोलॉजी की कोई डिग्री तुम स्टडी करना स्टार्ट किए और उसके पैरेलल में एक कोई कोर्सेज कर रहे हो एनिमेशन का, या फिर डिप्लोमा इन एनिमेशन करो, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन भी बनो, तो उसके लिए तुम्हें ये BSc CS IT ये सब भी करने की जरूरत थी। यप। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन, अगर तुम्हारे क्वेश्चन है पहले हम वो करना चाहिए सर गेम डेवलपमेंट प्रिया डेवलपर वगैरह सारे टेक के अंदर के पार्ट है। तो कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो अगर तुम्हें पढ़ना है, ये स्पेशलाइजेशन होती है, इसके लिए तुम्हें पढ़ना टेक ही पड़े, मतलब वही साइंस या कॉमर्स। अच्छा बहुत लोगों को ये नहीं पता है BSc IT, PSc CS, BCA ये साइंस के सिर्फ फील्ड नहीं है। मतलब अगर तुमने मैथ्स लिया है, मैथ्स लिए हो तो तुम चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी तुम ये सब कर सकते हो। मैथ्स कंपलसरी, तो अगर तुम कॉमर्स विद मैथ्स करते हो या आर्ट्स विद मैथ्स करते हो, ठीक है, या अगर साइंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर साइंस पे भी मैथ्स कंपलसरी, PCD नहीं, मतलब बायोलॉजी में PCM होना ज़रूरी। तो तुम BSc CS, BSc IT, BCA ये सारे फील्ड में कर सकते हो, या फिर इंजीनियरिंग जिनको करना हो तो सिंपल। और फिर उसके अंदर गेम डेवलपमेंट जो है वो सीखोगे तुम, वो एक स्पेशलाइजेशन। अगर आगे जाके स्पेशली गेम डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स लॉन्च होती है, कोई चीज़ें आके को अलग बात है, फिलहाल ऐसा स्पेशलाइजेशन ऐसे नहीं। AI डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, ऐप डेवलपर बन सकते हो। जो ऐप डेवलपर होता है वही गेम डेवलप करता है ना। मतलब 11 में PC और MA ले। हाँ अगर साइंस से जा रहे, अगर साइंस मतलब सिर्फ PC जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड में भी तुमने पढ़ा है, फोर्स मैटर्स मास, अगर वो तुम्हें समझ में आता था तो तुम साइंस हो। बट मान लो वो तुम्हें डिफिकल्ट लगते थे तो मत हो। फिर कॉमर्स लेके भी तो मैथ्स लेके BSc CS IT BCA कर सकते, तो वो फिर वो इसलिए इंडिविजुअल हो जाता है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है मुझे आज नहीं पता, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ कि ये कर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम एज अ स्टूडेंट कैसे हो। तो वो मुझे समझना होगा, तब जाके वो डायरेक्शन एक प्रॉपर देने में और ज़्यादा परफेक्ट होगा कि मैं ये बोल रहा हूँ तुम ये कर दो ऐसा। तो इसीलिए ये चैलेंजिंग भी है इन हम वन ऑन इंटरेक्शन भी। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सिंपल जो हमने अभी डिस्कस किया सेम फील्ड है कि अगर या तो तुम BSc करो, मतलब BSc ऐसे साइंस के करो, या फिर कॉमर्स या आर्ट्स तो विद मैथ्स, और उससे का भैया इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है? जो टेक की स्टडी करता है, कंप्यूटर्स की स्टडी कर आगे जाके बट डेवलपर अभी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तुम कौन से क्लास में हो अभी? 10 अभी हो गया, अभी 10 हो के। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद तुम साइंस मैथ्स के साथ या कॉमर्स मैथ्स के साथ या आर्ट्स मैथ्स के साथ प्लस अगर इंजीनियरिंग करनी तो साइंस कंपल्सरी। तो साइंस से ही इंजीनियरिंग जो कि डिग्री है BE BTech ये इंजीनियरिंग होती है। बट अगर काम करना है टेक में बट इंजीनियरिंग नहीं करना है तब क्या करो? तो BSc करके CS IT PCA इनके थ्रू भी हम उस फील्ड में जा सकते। तो एक काम करने के कई सारे रास्ते होगी, अंदर वो DP एक एक करके समझना होगा पसंद। अच्छा इसमें एक चीज़ है, क्योंकि बच्चों में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये सवाल का जवाब एक लाइन में मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग हो, हर एक की इंटरेस्ट, फाइनेंशियल, घर के सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर दी। तो इस पे हम लोग अभी तरंग मतलब ये लास्ट ईयर से हम लोग काफ़ी सारे सेशंस कर रहे थे, तो एक आइडिया आया था मुझे। तुम लोग मुझे इसका जवाब ये बताना कि क्या ये अगर मार्केट में आए और वो तुम्हारे लिए काम है कि अगर मान लो एक वेबसाइट है या मान लो एक ऐप है, ठीक है, जहाँ पे तुम अपने इंटरेस्ट बताते हो, अपने क्लास बताते हो और अपना आगे जाके क्या करियर चूज़ करना चाहते हो ये बताते हो, और फिर वहाँ पे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलता है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो तुम ये बन जाओगे विद ऑप्शन कि जैसे एक कॉमर्स ऑप्शन आ गया, साइंस का आ गया, इंजीनियरिंग का आ गया, या फिर ऐसा ऑलरेडी मार्केट में किसी ने अगर यूज़ किया हो तो ऐसा कुछ पता है तुम्हें या ये काम का होगा? काम का होगा वो क्योंकि हम लोग ये बना सकते
मतलब हमारे लिए बनाना कोई बहुत बड़ी बात है, लोग टेक्टाइल लोग हैं ना। तो ये जब से मैं इंटरेक्ट कर रहा था मेरे माइंड में टाइप ऑफ द ये चल रहा था कि एक्चुअल में ये बना हुआ है जैसे ना, आज तो चैट जीपीटी में भी ये पॉसिबल। जैसे मैं चैट जीपीटी के पास जाके भी अगर एक क्वेश्चन करो तो वो भी मुझे एक रास्ता बताए, बट इसका स्पेसिफिक और डिटेल में हम लोग रिसर्च करके इसको और अच्छे से बना सकते हैं। ये सेशन के बाद मेरे माइंड में तो ये एक प्रोजेक्ट आ गया कि ये हम लोग बना के अगर हम बच्चों को दे देंगे, तुम इसमें अपने अपने इंटरेस्ट को पुट ऑन करो और तुम्हें ये पूरे रास्ते मिलेंगे। और फिर वो लास्ट में फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे एक ऑप्शन लगा के टॉप विद द काउंसिलर या टॉप विद एन एक्सपर्ट, तो तुम उनसे पहले बनाऊँ वो बात था नहीं। ये और आ रहा कोई बड़ी बात है, इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। मैं जाके 300 वाक्स तो एक सवाल क्या आई जल्दी जाओ सॉरी अगर इसमें जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि सर जो प्रोजेक्ट एकॉन करना चाह रहे हैं एक्चुअली उसमें अंदर मैं उतर चुका हूँ आगे जी। तो इफ इन केस इसको प्रॉपरली करना रहेगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई कोई ढाई में था क्योंकि 3 बजे हमारा स्टार्ट करना था, हम 1 घंटा डिले हुए थे, मेरा कहीं और का कमिटमेंट था, तो आई वो वेरी फास्ट। ठीक है, आई नो कि सब क्वालिफाइड काउंसलर्स बैठे थे और सबने सारे पॉइंट्स कवर किए रहेगा। तो ये तो सर बताया था कि एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी जी। आप कोई भी चीज़ करो, आप चाहे तो बिजनेस करो, आप लॉ फॉर्म में जाओ, इंजीनियर करो, आप मेडिकल करो, कोई भी चीज़ करो, सबसे पहला आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है करके, या जो आपके जो सेगमेंट्स है ना, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जैसे हम इंट्रोवर्ट हो के एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट क्या होता है अंदर से आइडिया आता है, और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है हमारी जैसा राइट नाउ आप लोग जो बोल रहे हो उस पर से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग मैं इंट्रोवर्ट होता तो मैं बात नहीं कर पाता है। दूसरा, जब मैं डेटा गैदर करता हूँ, जब मैं चीज़ें अपने दिमाग में गैदर करता हूँ तो मैं सेंस करके ले रहा हूँ कि इंट्यूशन बेस ले रहा हूँ। जब मैं जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो मैं थिंक करके ले रहा हूँ कि फील करके ले रहा हूँ। न्यू बैंक में सम लोग, एक बंदा बैंक में काम करता हूँ, ओके, और किसी पे लोन है और मैं हूँ फीलर, थिंक करके मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं फील करके डिसीजन लेता हूँ। अब मैं एक ऑफिसर हूँ और इसी का लोन मैं भर नहीं पा रहा ड्यू टू XYZ रीजन। अब मैं बोलूँ छोड़िए ना माफ़ कर दो, लेकिन बैंक का तो नुकसान हो गया ना। तो तभी थिंकर का काम है। और ये सब मतलब बोल रहे MBTI प्रोफाइल्स को एनालाइज करके एल्गोरिथम वगैरह रन करके ये किया हुआ है। बट इज जस्ट के आई नो वांटेड टू साउंड कमर्शियल, उसमें ये भी किया हुआ है, ये जस्ट टॉपिक निकला है सर ये मेहनत बचाने के लिए आप डन दिस ये बिकॉज ऐसा है कि सर कैन यूज अ प्लेटफॉर्म एंड वी कैन कोलैबोरेट ऑफ दिस एनी टाइम, बिकॉज ये लोगों के काम की चीज़ें, इट इज़ अ नीड ऑफ आर। क्यों लोग देखो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते, मेडिकल में एडमिशन लेते और 2 साल के बाद से ड्रॉप आउट करते। सो इससे क्या हो गया, 11वीं 12वीं का JEE का फीस दिया, इंजीनियरिंग का लाख रुपए 2 साल का फीस गया, बच्चे का 4 साल गया। तो बच्चा सोचता है मैं कल कुछ और कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा उसके लिए जिस चीज़ के लिए बना है, देखो क्या होता है, एक हो गया बच्चे का पर्सनैलिटी, दूसरा हो गया बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। जैसे सर अलग बता रहे थे कि बच्चे का इंटरेस्ट कैन बी रियलिस्टिक, जिसको मैकेनिकल चीज़ें करने अच्छी लगती है, पंखा धुलना, प्लीज धुलना, कोई भी मेहंदी लगाना, आपको टेलरिंग का काम देता, कोई भी चीज़ हो गई करेगी। तो वैसे सिमिलरली बच्चे का इंटरेस्ट कैन आर्टिस्टिक, जैसे कोई आप बोल रहे थे गेम डेवलप करना है, तो ये आर्टिस्टिक इंसान का काम है करके, टेक्निकल चीज़ उसमें आ रही है बट आर्टिस्टिक रहेगा सभी वो कर पाएगा। बच्चे का सिमिलरली इंटरेस्ट सेम सोशल, जैसे हमारे आर्य भाई इनको सोशल चीज़ें करने में बस है, तो आप से कोई ऐसा रहेगा कि भाई सोशल चीज़ें करके मतलब पैसे का हो, कोई ये करेगा कि भाई मेरे को ज़्यादा लोड नहीं है, मेरे को बस अपना 8 घंटा जाके काम करना और मैं रिटर्न आना चाहता हूँ, तो वो अकाउंटेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ही एल्गोरिथम डिज़ाइन किया और उसमें आपको अराउंड 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, आपको किस तरह के एनवायरमेंट, तेरे मोटिवेटर्स क्या है, उस तरह के वर्ड से फैक्टर्स पे एनालाइज करके आपको बताया जाता है कि भाई ये 4 या 5 प्रोफाइल्स आपके लिए फिट है। मैं किसकी बात करूँ, सिर्फ तेरे कस्टर की, मतलब आप अभी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के लिए क्या करना पूछ रहे थे ना, तो बट तन उसमें ना एक फ्री करियर लाइब्रेरी भी है। आप करियर लाइब्रेरी पर से क्लिक करोगे ना तो उसमें 20 फील्ड्स निकलेगी। आपका उसमें इंजीनियरिंग होगा, आपका मेडिकल होगा, आपका कंस्ट्रक्शन होगा, आपका हॉस्पिटैलिटी होगा, आपका एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग होगा, आपका लीगल सर्विसेज होगा। उसमें 20 अलग अलग करियर क्लस्टर है। उसमें क्लिक करने के बाद आपके जो आप क्या क्या बन सकते हैं वो फील्ड्स है। फिर उस पर क्लिक करने के बाद दिखाएगा कि इसमें वर्क नेचर क्या क्या होता है, अब उसमें क्या 30 थिंग्स रिक्वायर्ड है, आप क्या क्या बन सकते हो। क्या अभी स्कूल में थे तो हम लोग फाउंडेशन कॉम्पिटेंसी हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है।
फिर आप जब ग्रेजुएशन लोगे तो आपका कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करोगे। फिर कोर कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप करना है, फिर आप तो एकदम स्पेसिफिक क्वीन में याद है आपकी डिस्ट्रिब्यूटेड कॉम्पिटेंसी आपको क्या डेवलप करनी है, ऐसे रोड मैप भी है। फिर भी अब ये हो गया एनालिसिस करके आप, क्योंकि हम लोग कैसा है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो, सीधा 35 साल उसी फील्ड पे काम करोगे। और उसके बाद में नई स्टेज क्या है, आप बोलो कि सर ये 4-5 में सूटेबल हूँ, बट इसे तो यार इंटर ही कहा। तो उसने और एक चीज़ क्या की है कि भाई इंजीनियरिंग का वर्क नेचर क्या है, इंजीनियरिंग में किस तरह का काम होता है, आप इंजीनियरिंग के प्रोफाइल में राइट हो कितने सूटेबल हो और कितना आप लैग कर रहे हो। आप 40% समझो लैग कर रहे हो, तो लैग करने में आप कहाँ का मार खा रहे हो, आपको कौन सी चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है, वो भी उसने कवर किया। मतलब हमारे 4 तो ये हो गए कि भाई ये चीज़ों के लिए वो 4 में और 10 चीज 4 इंसान बन सकते हो, वो तो आ ही रहा है। बट गैप एनालिसिस भी किया और गैप एनालिसिस भी किया और कि जो चीज़ें आपको नहीं है बिल्कुल इसमें मतलब अच्छा नहीं सर एक चीज। हाँ, आपने मैं प्लेटफॉर्म का सुन रखा है और रिपीट कर सकते क्लियरली, वो आवाज़ नहीं है उसका प्लेटफॉर्म का नाम है www.atiq को डालकर KUDALKR.edu my stones STONES.com। जी यस मैं लिख दूंगा, ये देखिए स्टूडेंट के लिए मुझे हेल्प मिला। अच्छा उसमें थे atiqudalkar.edumilestone.com है, उधर पे आप अगर जाओगे ना तो और एक सरप्राइज पैकेज उधर जो अपने बच्चे JEE नीट के लिए प्रिपरेशन आपको मान ले कितना फीचर रहेगा क्या देखेंगे। तो उनका हाँ जो जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक जो आपके होते हैं, आप SSC आप JEE का बोलो, आप UPSC बोलो, आप बैंकिंग बोलो, आप लॉ का बोलो, आप BA का हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर सारे के सारे उसके मॉक टेस्ट एक उधर में है। कम्पीट टुडे का लोगो दैट इज ऑल्सो माई यार जो सर ने इंट्रोडक्शन दिया ना साढ़े उधर कम्पीट टुडे, तो कम्पीट टुडे पे आपके सारे मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल और गवर्नमेंट एग्जाम के वीडियो लेक्चर्स है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे और हमारे साथ आएंगे तो वो भी हम लोग इंटीग्रेट कर देगी, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या था कम्पीट टुडे बेसिकली क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिधर पे आप मतलब जैसे हम जैसे बच्चे जो मतलब बोलते हैं ना कि एकदम मिनिमम एकदम फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट है, जैसे JEE का मैं मान दीजिए अगर 50,000 रुपये की थी तो हम लोग 500 रुपये में लोगों को सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हो गए ना आपके जो वो भी नहीं कर सकता वो को भी एकदम इसमें कर देगी, मतलब फ्री में कर लेगी। उसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि हम एक एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए जहाँ पे बच्चों को ओडी से सारे आपके मॉक टेस्ट आ गए। एक बच्चा बोल तो रहा है कि मैं UPSC लूँ, लेकिन UPSC का पेपर आता कैसे वो कैसे मालूम पड़ेगा, पेपर वहाँ जाके देना पड़े तो उतना रुकने की ज़रूरत है। सेक्शन में जाओ, UPSC खोलो, UPSC का पेपर चेक करो, पेपर देख के देखो, उधर पे आंसर्स भी आएंगे, AI भी इंटीग्रेटेड है कि भाई आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो, क्या करते हो, पूरा कार्य इसमें कवर्ड है। ये जस्ट टॉपिक देख रहा कि सर वॉज ट्राइंग टू जब आई टू बता इसलिए मैंने बताया कि भाई ऑलरेडी वो काम किया हुआ है और इज रिक्वायर्ड वी कैन डिफरेंटली कोलैबोरेट। यस रियली वेरी सिर्फ मैं क्लास से मैसेज दूंगा आप बच्चों को, और आई नो बहुत टाइम हो गया, आई एम सॉरी मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था ड्यू टू माई पर्सनल कमिटमेंट्स। सिर्फ मैं आपको सभी को बोलूँगा आप जो भी चीज़ करना है, देखो बिजनेसमैन में बनना है तो आप सभी ने रीडिंग की हैबिट डेवलप करना है। सबसे पहला रीडिंग से क्या आएगा, आपको आएगी क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी से होता है इनोवेशन, इनोवेशन से आपका एक तरह से होगा लर्निंग से बेसिक देता आता है नॉलेज आता है, एंड नॉलेज इज पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑल दिस मैं इसी से कंप्लीट करूँ। थैंक यू सर। और इसी के साथ और जो 2 गेस्ट रह चुके हैं हमारे एक बेटा, तो मैं देखिए यही चीज़ें जो हम चाहते थे कि आप ही के बीच में से आज जो एक बच्चा जो है यहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे, हमको खुशी हुई कि आप ही के बच्चे में से कैसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो मैं हमारे अली अब्बास जो है हमारे रिजवी, उनको मैं चाहूँगा नासिर भाई के प्लीज़ इस शॉल्स के तरीके ये बच्चे ने आज एंकरिंग की और माशाल्लाह बहुत सी अच्छी एंकरिंग की, आप उसके लिए तालियां गोडेशन बनाइए, वही हम चाहते हैं। अच्छा यही हमारी एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारी इनकम है। अगर ऐसी जब बच्चे रेडी होते हैं ना तो ये समझ लो ये हमारी इनकम है, जो हम लोगों ने मेहनत की है यहाँ तक के ना, तो वैसे तब आप लोग होंगे ना तो समझ लीजिए कि हम लोग को हमारा मेहनत का फल मिल गया।
कि कम्युनिटी के लिए कुछ हुआ और आगे चल के कम्युनिटी कुछ काम आएंगी। और उसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे रिजवी अतीक सर रह गए थे, और मैं हमारे अतीक सर को भी चाहूँगा नासिर भाई के एक फेलोशिप किया कौर पे शॉल बुके बेटा ये आप तो शायद आदिक सर ने बताया नहीं होगा कि मिलिट्री में भी है, उसके बावजूद भी इनका शौक देखिए कि दीन के और अपने कौम के बच्चों के लिए ये हर वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के बेसिस में जाए। और जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग यंग है और यूथ हो, तो आप लोगों को इसमें पहुँचना है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसा लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट का 6 दिन का कोर्स है जो मैं फ्री ऑफ चार्ज करवाता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इतनी दिलवाता हूँ, बाकायदा पुलिस का कार्ड के साथ साथ आपको पुलिस का भत्ता भी 590 रुपये हेल्प दिलवाता हूँ मैं। पर उसके साथ ही साथ आपको परेड में हो गया, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया। देखिए जब तक हम हमारे माहौल को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हुआ ये धारा इसी निकल के थोड़ा बाहर की देखिए कि बाहर की दुनिया क्या है, और जब उस स्टैंडर्ड और उस स्टेटस का आप लोग बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए और क्या करने वाले। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आज 52 अगस्त का हो गया, मैं अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैं खुद 6 दिन का कोर्स करके अभी मुझे फर्स्ट रैंक मिलने वाला है, स्टार मिलने वाला है। तो मैं उसमें मेहनत किया। कल भी मेरी परेड है, 1 मई को महाराष्ट्र डे है, उसमें मेरी परेड है। 1 मई दाढ़ी वाला हो, बाकी सब बिना दाढ़ी वाले लोग इससे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि दाढ़ी का, उसके भी मैंने एलिगेशन मार दिया कि भाई दाढ़ी क्यों नहीं है, नहीं तो पंजाबी लोगों को भी पहने को नदीम भाई ये बहुत बुरी चीज़ है। और एकदम बीचों बीच में घुसा आ रहे, आप यकीन मानो उनके बीच में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी का इखलाक मेरे काम आया और हर जगह में सक्सेस पाया सिर्फ मेरे नबी के इखलाक की वजह से। ये एक बहुत बड़ा हथियार है। आप लोग ये सोच के चलिए कि हमें नबी ने जो है ये हथियार दे के गए हैं ना, ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए काफ़ी, और वो है इखलाक। इखलाक से तुम हर चीज़ जीत सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रैंक भी हो गया। फिर कल मेरी प्रैक्टिस है, उसके बाद 1 मई को मैं शौरी बार में उतरने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग को गवर्नर के हाथों से सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है, बाकायदा 3 का उनको कार्ड मिलता है और सर्टिफिकेट्स मिलता है, पुलिस का ड्रेस मिलता है, बाकायदा उसमें रैंक वाइज होता है। वो इतनी रैंक खाली है कि पूछो मत। और लोगों को पता नहीं डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है 1968 में पूरे वर्ल्ड में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ये लोगों को डिज़ास्टर जो भुका था जो कोई भी यानी अनहोनी होती थी। ठीक है, तो मैं इसमें मेरी बात ख़त्म करता हूँ। तो नहीं सर सब ये ट्यूशन पे कहाँ करता